میری شادی میری 6 سال بڑی میری بیوہ بھابھی سے ہو گئی تھی۔ میری بھابھی سے میرے 2 رشتے تھے۔ میری بھابھی میری پھپھو ذات بھی تھی اور خاندان کی بڑی لڑکی بھی تھی۔ میں بچپن سے انہیں باجی بولتا آیا تھا اور جب میرے بھائی کی شادی ان سے ہوئی تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا، ان کو بھابھی کہا اور بہن جیسا مان لیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان بہت محبت تھی۔ میرے بھائی میرے بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی کی 4 سالہ شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی جب اچانک ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آ گیا کہ میری بھابھی بانجھ تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات ہم گھر والوں کے لیے صدمے سے کم نہ تھی۔ ہم بہت غم زدہ تھے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور ہمیں بچے کی شدید خواہش تھی۔ اس بات کو لے کر امی نے بڑا ہنگامہ کیا کہ مجھے تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے اور بھائی کی دوسری شادی کروانا چاہیے، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ بھابھی یہ سب کچھ دیکھ کر روتی رہتی پر کچھ نہ کہتی۔ گھر میں امی ابا بھائی کو راضی کرتے پر بھائی نہ مانتے اور کہتے کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تھک ہار کر سب خاموش ہو گئے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ہم سب کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میری امی ہر وقت میری بھابھی کو باتیں سناتی رہتی اور کہتی کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر زبردستی بھابھی کو گھر سے نکالنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر یہ اب گھر میں رہی تو ہم سب کی خوشیاں کھا جائے گی۔ امی کی اس حرکت کو دیکھ کر ابا غصے ہو گئے اور امی کو غصے سے ڈانٹا کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی یہ گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ ابا کی اس بات پر امی مزید غصے ہوئی اور حتمی فیصلہ کیا کہ عدت پوری ہوتے ہی اسے گھر سے نکال دیں گی۔ کسی نے امی کو کچھ نہ کہا۔ مجھے بھابھی پر بڑا رحم آتا تھا۔ میں امی کو اکیلے میں سمجھاتا تو امی مجھ پر ہی غصہ کرتی اور پھر شک بھی کرتی، اس لیے میں نے اب امی کو سمجھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس یہی سوچتا اماں جو کرتی ہیں کریں، اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہوں گی۔ میں تو ویسے ہی اماں کو میری خالہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجنے والا تھا۔ مہرین خالہ امی کی چھوٹی بہن تھی اور ان کی بیٹی نورین مجھے بہت زیادہ پسند تھی، اور مجھے یقین تھا کہ امی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ امی کی اپنی بہن کی بیٹی تھی اور امی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ کئی بار باتوں ہی باتوں میں مجھے کہہ بھی چکی تھی کہ نورین مجھے بہو کے روپ میں بہت پیاری لگتی ہے۔ اس وقت تو میں امی کو کچھ نہ کہتا اور نہ ہی اپنی پسند بتاتا کہ جب امی خود میرا کام کر رہی ہیں تو میں کیوں بولوں، جبکہ امی نے بھی یہ صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک بھابھی گھر میں ہیں ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بھی چپ تھا کہ جب بھابھی کا پتہ صاف ہو جائے گا تو بات کروں گا۔ وقت تیزی سے گزرا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کی عدت ختم ہو گئی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب امی کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ پہلے جو امی بھابھی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتی تھی وہ اب بالکل خاموش تھی، جبکہ بھابھی کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید ابا کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، اسی لیے میں بھی خوش ہو گیا کہ اب بھابھی کی روح کو سکون ملے گا۔ میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے امی کے سامنے اپنے رشتے کی بات رکھ دی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ خالہ سے بات کریں۔ میری بات پر امی بالکل چپ ہو گئی اور پھر جو بولی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی کی باتیں تو میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی جب وہ بولی کہ میں تمہاری خالہ سے شادی کی بات نہیں کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم فائزہ یعنی اپنی بھابھی سے شادی کر لو۔ ان کی بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا کہ امی یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ جب امی نہ مانی تو میں نے یہ بات ابو کو بتائی، جبکہ امی کی یہ بات سنتے ہی ابو بھی دنگ رہ گئے۔ وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اچانک امی کو ہو کیا گیا ہے۔ انہوں نے امی کو منع کیا کہ یہ سب مناسب نہیں ہے، پر جیسے امی پہلے بھابھی کو گھر سے نکالنے پر تلی تھی اب زبردستی بھابھی اور میری شادی کروانے پر تلی تھی، اور پھر انہوں نے ابو کو بھی راضی کر لیا، جبکہ مجھے بھابھی کی ذات واقعی منحوس لگ رہی تھی جنہوں نے ہم سب کی خوشیاں کھا لی تھی۔ میں نے امی کو یاد دلایا اب میں ہی ان کا ایک اکلوتا وارث بچا ہوں اور بھابھی بھی ایک بانجھ عورت ہے۔ اگر میری شادی بھابھی سے ہو گئی تو وہ کبھی دادی نہیں بن سکیں گی۔ میری بات سنتے ہی امی سن ہو گئیں اور پھر مجھ سے بولی کہ تمہاری بھابھی ایک خاص عورت ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اگر اس کی شادی تم سے ہو گئی تو سمجھو کہ تمہاری زندگی سنور جائے گی۔
सारी जिंदगी खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। जबकि मैं अम्मी की बात पर दंग रह गया कि अचानक ये काया कैसे पलट गई। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वो बड़ी हस्ती कैसे बन गई। और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद भी अम्मी ना मानी तो मैंने भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी करना नहीं चाहता, पर वो कुछ ना बोली, ना ही अम्मी को मना किया। मुझे शक था कि ये जो सब हो रहा है वो भाभी की वजह से हो रहा है। उन्होंने कुछ न कुछ अम्मी पर किया है और फिर लाख इनकार करने के बावजूद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बेवा से कर दी गई। लेकिन निकाह के बाद मैंने सबसे साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद ना लगाएं कि मैं कभी इन्हें अपनी बीवी की जगह दूंगा। लेकिन वो सब बड़े मुतमईन थे कि निकाह हो गया है तो मैं भी मुट्ठी में हो जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी कही बात सच कर दिखाई और भाभी को अपने कमरे और अपनी जिंदगी में घुसने तक ना दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो जाती और कुछ ना बोलती, बल्कि घर के अंदर एक कोने में मुलाजमा की तरह पड़ी रहती। जब मैंने कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अम्मी से रिश्ते की बात की और कहा कि मैंने एक शादी आपकी मर्जी से की है तो दूसरी शादी अब आप मेरी मर्जी से करें। मेरी बात सुनते ही अम्मी ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं नौरीन से मोहब्बत करता हूँ। अम्मी ने कहा कि वो एक शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन मैंने अम्मी से कहा कि आप उसे मनाएं और बताएं कि इस शादी की कोई अहमियत नहीं, वरना अगर मेरी शादी नौरीन से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को तलाक दे दूंगा। मैं समझता था कि अम्मी मेरी बात पर डर गई हैं। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, जबकि अम्मी का डरा हुआ चेहरा देखकर मैं मजीद शेर हो गया था। मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर अम्मी बुरी तरह खौफजदा क्यों हो गई हैं। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से अम्मी इतना डर रही हैं। ना ही मैंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो मेरी भाभी की दुश्मन थी, वो कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैंने इस बात पर गौर ही ना किया था कि ये राज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। खैर, मेरी धमकी ऐसी थी कि अम्मी खाला से बात करने के लिए मान गई और फिर उन्होंने ना सिर्फ खाला से बात की बल्कि खाला को मना भी लिया। और अपनी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी बीवी को घर ले आया। जब अचानक मेरी पहली बीवी, जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने अजीब सा अमल शुरू कर दिया कि वो रोज मेरी बीवी के लिए नारियल का पानी लाती और कहती कि इसे पी लो, इससे जल्द ही तुम उम्मीद से हो जाओगी। मेरी दूसरी बीवी वो पानी पी लेती, जबकि मैं अजीब सी नजरों से अपनी बीवी को देखता रहता कि भला ये क्यों मेरी बीवी पर इतनी मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि जब जब मेरी बीवी नारियल का पानी पीती है, बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। मैं बड़ा परेशान था। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब एक दिन मेरी भाभी अचानक से बेहोश हो गई और ये देखते ही हम सब बड़े परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते थे। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनते ही हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वो हामला हो चुकी थी। ये सुनते ही हम सब हैरान रह गए, क्योंकि मेरी भाभी तो बांझ थी, जबकि ये सुनते ही मेरी भाभी हामला हो गई है। मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया था और मेरे अंदर भी खून खोलने लगा कि मैं तो कभी इनके करीब ही नहीं गया, तो वो हामला कैसे हो गई। मैंने घर में एक हंगामा बर्पा कर दिया। मैंने बताया कि मैंने तो इन्हें छुआ भी नहीं है और ये तो बांझ हैं। मेरी बात सुनते ही अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोली कि ये तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने बेयकीनी से अम्मी को देखा, वो इस तरह से कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि मैं एक बदकिरदार औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनकर मेरी भाभी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि तलाक ना दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बच्चा आपका ही है। उसका ये कहना था कि मुझे मजीद गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से चला गया। जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे, वो इस बच्चे की आमद की खुशी मना रहे थे, जो उनका पोता था ही नहीं और ना ही मेरा बेटा था। अब्बा ने भी मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैंने अपनी भाभी पर इल्जाम लगाया, उन्हें तलाक दी, तो वो मुझसे अपना रिश्ता तोड़ देंगे। उनकी इस बात पर मैंने फैसला किया कि मैं अब खुद भाभी के करतूत उन लोगों के सामने रखूंगा, ताकि उनके सामने भाभी का असल चेहरा आए। मैंने चुपके से उनकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और घर से निकल गया।
अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई ताकि सबूत हासिल कर सकूं। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मेरा ही। मेरा नाम मुरीद है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा मर्द हूँ। मेरी नौकरी भी अच्छी है। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरी मरहूम फूफो की बेटी फायजा को पसंद करते थे, जबकि मेरी अम्मी को वो एक आंख पसंद नहीं थी। अम्मी ने उस रिश्ते पर बहुत मुखालफत की कि वो ये शादी कबूल नहीं करेंगी, लेकिन भाई की मोहब्बत जोरों पर थी। अम्मी ने उनको समझाया कि भाभी के कदम मनहूस हैं, वो जब से पैदा हुई है कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर भाई ना माने। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम भी मजीद भाभी से बदजन हो गए। भाभी के हर काम से अम्मी को इतराज होता। वो भाभी का कोई काम पसंद नहीं करती थी। मैं कहीं किसी को पसंद ना कर लूं, इस डर से मेरे सामने बार बार नौरीन का नाम लेती थी कि नौरीन एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी नौरीन से मोहब्बत करता था। मेरा रास्ता आसान था। लेकिन फिर अम्मी को भाभी के बारे में एक ऐसी चीज पता चली जिससे सभी भाभी के खिलाफ हो गए और अब भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गए कि मेरी भाभी बांझ थी। लेकिन भाई ने यहाँ भी अम्मी की मुखालफत की और दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज्यादा अरसा ना रहे और उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की देर थी कि अम्मी एक लम्हे को भी भाभी को बर्दाश्त करने को तैयार ना थी, जबकि भाभी के आगे पीछे कोई ना था। भाभी सिर्फ खामोश आंसू बहाती रहती। लेकिन फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ, जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराइयां करती थी, वो उनकी तारीफें और गुण गाने लगी, इस हद तक कि मेरी भाभी की शादी मुझसे करवाना चाहिए। फिर मेरी एक न चली और मेरी बेवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया गया, जो मुझसे कई साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था। वो मेरे भाई की बेवा थी, लेकिन बीवी के तौर पर उन्हें कबूल नहीं कर सकता था, इसलिए कभी उनको अपने पास भी नहीं आने दिया। और फिर उनको निकाह में रखने की शर्त ये रखी कि नौरीन से मेरी शादी करवाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। अम्मी ने खाला को नौरीन और मेरी शादी के लिए मना ही लिया। पहले तो खाला अम्मी से सख्त नाराज हुई कि उन्होंने नौरीन को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को मेरी ही बीवी बना दिया। लेकिन फिर अम्मी ने उन्हें पता नहीं कौन कौन सी मजबूरियां सुनाई और बताया कि वो तो सिर्फ नाम का निकाह है। फिर काफी सोचो विचार के बाद वो मान गई। नौरीन ने इस शादी पर बहुत इतराज किया था कि वो एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी। लेकिन जैसे मेरी फायजा के वक्त ना चली, वैसे ही नौरीन की मेरे वक्त ना चली और नौरीन मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद फायजा नौरीन का बड़ा ख्याल रखती और नौरीन भी फायजा के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। फायजा ने उसे रोज नारियल का पानी पिलाना शुरू किया था, लेकिन नौरीन जितनी फायजा से बातें करती, मुझसे उतना ही चिढ़ती, और खासकर जब वो नारियल का पानी पीती तो मुझसे बुरी तरह चिढ़ने लग जाती और मेरे पास तक न आती। रोज रात को जब वो समझती कि मैं सो रहा हूँ, तब कमरे में आती। मैं उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया था कि ये सब मेरी साबका भाभी यानी फायजा कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाता या उसे कुछ कहता, वो हामला हो चुकी थी और मेरे बार बार कहने के बावजूद कि वो बच्चा मेरा नहीं है, सब खुश हो गए थे। लेकिन अब बहुत हो गया था, इसलिए डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन जो बात सामने आई वो मेरी रूह तक को झंझोड़ गई। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और उस पर लिखा सब बार बार पढ़ रहा था, पर अब भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा। फायजा ने। मैं गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने सोच लिया कि अब बस हो गया। मैं फायजा के चेहरे पर चढ़ा निकाब उतार दूंगा और उससे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। मैं सीधा फायजा के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आती आवाजों पर पांव ठहर गए। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैं रोता हुआ कमरे में आ गया। जो आज हकीकत मेरे सामने खुली थी, उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। मैं रो रहा था जब नौरीन मेरे पास आई और बोली, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मैंने उसे देखा। कमरे में आती मेरी अम्मी दहल गई और बोली कि नौरीन बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो। पर मैंने अपनी उस बीवी को देखा कि जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, और उसने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता था। जब वो बोली कि मैंने फायजा से ताल्लुकात बनाए, जबकि मैंने कहा था कि ये सब झूठ है, मगर फायजा तो अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो बस अब नौरीन मेरे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मेरी माँ कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने बिना देर किए उसे 3 तलाकें दे दी।
नौरीन और अम्मी हैरत से मुझे देखती रह गईं, क्योंकि उनको बिल्कुल तवक्का ना थी कि मैं इसे तलाक दूंगा। लेकिन मुझे उससे अब घिन आ रही थी और मैं उसके साथ एक छत तले नहीं रह सकता था, इसीलिए उसे तलाक दे दी। नौरीन रोते हुए कमरे से अपना सामान बांधने लगी, जबकि अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि अब मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। अम्मी की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इन सब से मेरी माँ वाकिफ थी। मैंने अपनी माँ से कहा, मेरा तो दिल करता है कि मैं फायजा को भी तलाक दे दूं और आपको भी अभी छोड़कर चला जाऊं, कि आप सबने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी बात पर अम्मी यकदम चुप हो गई, जबकि नौरीन भी सामान छोड़े खौफजदा थी और मुझे देखने लगी। जब अम्मी घबराकर बोली कि मैंने क्या किया है, तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताएं कि ये सब क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ, सारी हकीकत से वाकिफ हूँ। तो मेरी बात सुनते ही अम्मी रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और फायजा की शादी पसंद की थी, लेकिन अम्मी फायजा को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए भाई ने उसका फायदा उठाया और अपनी कमाई भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बांझ थे और ये बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो वो तलाक दे देंगे, सिर्फ इसीलिए कि कोई उन पर सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनहूस के ताने सुन सुनकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। फिर एक रोज और सितम उन पर कि भाई का इंतकाल हो गया और अम्मी ने उसका कसूर भी उन पर डाल दिया। भाभी की इद्दत के आखिरी दिन चल रहे थे। जब अम्मी पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाजें सुनी, तो वो उनके कमरे की तरफ चली गई और अंदर भाभी को अल्लाह के सामने रोता हुआ देखा और सारी हकीकत सुनते ही अम्मी को सांप सूंघ गया। उन्हें अपना गुज़श्ता रवैया याद आ गया। वो अचानक अल्लाह के कहर से डर गई थी और भाभी से अपने किए की माफी मांगी और फिर बहुत रोई। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि फायजा की मुझसे शादी कर दें, लेकिन फिर जब मैंने नौरीन से शादी की शर्त रखी कि मैं तलाक दे दूंगा, तो वो मजबूर हो गई और उन्होंने खाला से मेरे रिश्ते की बात की, तो खाला ने साफ इनकार कर दिया, पर अम्मी ने उन्हें मना ही दिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन ही नौरीन अम्मी से मिलने आई और अम्मी को बताया कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। नौरीन की बात सुनते ही अम्मी परेशान हो गई और फिर नौरीन को समझाया कि अभी वो शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक लेने के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना कभी उस गरीब आदमी से तुम्हारी शादी नहीं करेगी। और ये हकीकत ही थी, क्योंकि नौरीन जिसको पसंद करती थी वो गरीब था और खाला नौरीन की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। नौरीन अम्मी की बात मान गई, जबकि अम्मी ने ये सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो नौरीन खुद ही इस लड़के को भूल जाएगी और कुछ वक्त गुजरने के बाद इस रिश्ते को कबूल कर लेगी। वहीं नौरीन ने भी मुझसे इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दे दिया, लेकिन वो मुझसे खफा खफा रहती और रात गए अंधेरे में लौटती। लेकिन दरअसल वो अंधेरे में लौटने वाली नौरीन नहीं बल्कि फायजा थी, और ये सब मेरी अम्मी का किया धरा था कि नौरीन मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और अम्मी फायजा से मेरा ताल्लुक मजबूत करना चाहती थी, और वो भी औलाद के जरिए। और फिर सुबह होते ही नौरीन अपने कमरे में और फायजा अपने कमरे में चली जाती। इस तरह नौरीन जिसे मेरे पास आना या इस रिश्ते को कबूल करना गवारा ना था, क्योंकि वो मेरे निकाह में होते हुए खुद को किसी और की अमानत समझती थी। मैं डीएनए रिपोर्ट देखते ही कितनी देर पत्थर की तरह खड़ा रहा, लेकिन जब घर वापस आया तो अम्मी और फायजा नौरीन को समझा रही थी कि वो तलाक लेकर अपनी जिंदगी यूं खराब ना करे, लेकिन वो फिर भी अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी, जो मेरी गैरत को गवारा ना था। मैंने इसी वजह से उसे तलाक दे दी। मैं सबसे नाराज था। मेरी अम्मी बहुत परेशान थी। नौरीन जा चुकी थी और उस आदमी से शादी भी कर चुकी थी। साल के करीब मेरे घर बेटा पैदा हुआ और मैंने फायजा को तस्लीम कर लिया। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 बच्चे मजीद पैदा हो चुके हैं और अपने फायजा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि वो एक नेक बीवी है और आज सब कुछ ठीक हो चुका है।